لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت نون لیگ سے ہے۔ سی ای سی نے لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراضات پر آصف زرداری کو ٹاسک دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے نواز شریف واپس آئیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ایک جماعت پروپیگنڈے اور کردار کشی کی ماہر ہے، عوام کو کوئی دلچسپی نہیں کہ قیدی نمبر فلاں کیا ڈرامہ کر رہا ہے۔ عوام کا مسئلہ بچوں کی فیس اور دوائیاں ہیں، عوام کو ایک امیدوار روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ مزید کہا بھارت ہمارے ملک میں دہشت گردی میں ملوث ہے، اب دنیا میں بھی بے نقاب ہو گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ عالمی برادری کب تک بھارت سے جڑے واقعات کو نظر انداز کرے گی؟ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا ہر شخص انجام کو پہنچ چکا۔ سازشی صرف گھر ہی نہیں گئے بلکہ رسوا بھی ہوئے۔ قدرت کا نظام جب حرکت میں آتا ہے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہنے والوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی، مگر نواز شریف ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر لوٹے۔ انہوں نے نشیب و فراز بہت دیکھے، جب سے مشرف نے اقتدار کا تختہ الٹا اس دن سے یہ شروع ہوا، مگر نواز شریف کی واپسی ناکامیوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار شریف خاندان ہے۔ پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی نواز اور شہباز کی وجہ سے ہے۔ واپسی پر نواز شریف کو مایوسی ہوگی، عوام استقبال کے بجائے حساب مانگیں گے۔ الیکشن کا اعلان ہوگا تب پتہ چل جائے گا کون کس پوزیشن پر ہے۔ پرویز الہی کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا آئی ایم ایف سے ظالمانہ معاہدے کی سزا عوام بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ اور فوج پر اعتماد ہے، دونوں ہمارے ادارے اور ملکی سلامتی کے ضامن ہیں۔ عدلیہ انصاف دے رہی ہے لیکن یہ لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم اپنے مقدمات عدالتوں میں لڑ کر سرخرو ہوں گے۔ پرویز الہی کو رہا کرنے کے خلاف نیب اپیل ناقابل سماعت قرار۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا نیب ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے میں براہ راست متاثرہ فریق نہیں۔ سنگل بینچ نے اپنے عبوری حکم میں اپیل کنندہ سے متعلق براہ راست کوئی حکم نہیں دیا۔ ادھر لاہور میں مجسٹریٹ نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ اینٹی کرپشن کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی عروج پر، سفارتی تعلقات متاثر۔ کینیڈین حکومت کا سینئر بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ بھارت کا بھی جوابی اقدام، سینئر کینیڈین سفارتکار کو 5 روز میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ نے کینیڈین ہائی کمشنر کو طلب کر کے سفارتکار کی ملک بدری سے آگاہ کیا۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارتی ایجنٹ سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ بھارتی انٹیلیجنس کے سربراہ پون کمار رائے کو اسی سلسلے میں ملک بدر کیا گیا۔ لاہور میں وقفے سے بارش، شہر ڈوب گیا، نشیبی علاقے زیر آب، پوش علاقے بھی محفوظ نہ رہے۔ پانی جمع ہونے سے آمد و رفت میں مشکلات، سڑکوں پر بھی پانی کی فراوانی، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے رہائشیوں کو شدید مشکلات، ترسیلی نظام متاثر ہونے سے متعدد علاقے بجلی سے محروم۔ پرانے ایئرپورٹ کے قریب گھر کی چھت گر پڑی، 1 مرد اور 2 خواتین زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ سب سے زیادہ بارش تاج پورہ میں 181، ایئرپورٹ کے اطراف 180 ملی میٹر ریکارڈ، نشتر میں 170، گلبرگ 157 اور اقبال ٹاؤن میں 120 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کی دھواں دار اننگز، فیصل آباد، ننکانہ، چنیوٹ، اوکاڑا، ساہیوال، ناروال، بہاول نگر اور دیگر شہروں میں موسلادھار بارش سے جلتھل، بازار اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل۔ تھرپارکر، سانگڑ سمیت زیریں سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ بلوچستان میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل، جوب، بارکھان، سبی، پزدار، کلات، لسبیلا اور آبران میں بادل جم کر برسیں گے۔ کراچی میں بھی بارش کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں بارشوں کا موجودہ اسپیل 2 دن جاری رہے گا۔ ایف آئی اے اور حساس ادارے نے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے مرحلے میں گھروں میں ڈالر چھپانے والوں کے خلاف ٹارگیٹڈ چھاپہ مار کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایکسچینج کمپنیز سے لیے گئے ڈیٹا کے مطابق
मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई। FIA का चारसदा में छापा, गैर कानूनी एक्सचेंज चलाने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। डॉलर, यूरो, पाउंड, सऊदी और कतरी रियाल और कोरियन करेंसी बरामद। FIA के मुताबिक हवाला हुंडी से मुतालिक शवाहिद भी बरामद कर लिए गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 5 पैसे कमी। डॉलर रेट 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 296 रुपये में फरोख्त। MKM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। फारूक सत्तार का सिंध में इंतजामी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि तकर्रुरियों और तबादलों पर हमारे तहफ्फुजात हैं। सिंध में 15 साल बद इंतजामी का तसलसल कायम है। हमने इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। उम्मीद है हमारे तहफ्फुजात का अजाला होगा। पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान कहते हैं MKM का वावेला बिला जवाज है। आला ओहदेदार इन्हीं में से हैं। MKM थप्पड़ भी मारती है और रोती भी है। ये सियासी जमातों के साथ हर दौर में इख्तिदार में रहे, अब रो रहे हैं। मुल्क में वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ का इजाफा। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज कर गई। मर्द वोटर्स 6 करोड़ से ज्यादा, खवातीन 5 करोड़ से जायद हैं। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 23 लाख से ज्यादा। सिंध में 2 करोड़ 66 लाख से जायद है। KP में 2 करोड़ 16 लाख से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। बलूचिस्तान में 52 लाख और इस्लामाबाद में 10 लाख से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड। 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10 करोड़ 59 लाख थी। पठान का अखलाक बेमिसाल। पठान दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के जमीन के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस और वकील का दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। वकील मुनीर पराचा ने दलाइल दिए। 2 भाइयों का आपस में तनाजा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहां मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। वकील ने जवाब दिया, लगता है मैंने गलत जगह पर बात कर दी। अदालत में कहे लग गए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, मुझे नहीं लगता कि बेंच में इस मामले पर इत्तफाक की राय होगा। हमने आधी मुकदमाबाजी के रास्ते को बंद करना है। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को प्रोबेशन के अहल तमाम कैदियों की रिहाई यकीनी बनाने का हुक्म। कैदियों की प्रोबेशन पर रिहाई कवानीन पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, वज़ीर आज़म और वज़राए आला प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन का फ़ाल होना यकीनी बनाएं। कैदियों को आज़ादाना नक्ल हरकत के सिवा तमाम आईनी हकूक़ हासिल होते हैं। मुल्क भर की जेलों में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी होने की वजह से आईनी हकूक़ की फराहमी नामुमकिन हो चुकी। जेलों में अदम सहूलियात का शिकार अफराद की अक्सरियत गरीबों की है। गरीब लोगों को रियासत भी सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमात। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अहम इजलास कल 3 बजे तलब कर लिया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को दावत। इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने के लिए वकला तंजीमों की तजावीज़ ली जाएंगी। वकला फौरी नौयत के मुकदमात की जल्द समाअत के लिए तजावीज़ देंगे। उधर चीफ जस्टिस के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात चलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील। रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार शामिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर न्यूयॉर्क में मौजूद तुर्किया और ईरान के सदूर के साथ अलग अलग साइड लाइन मुलाकातें होंगी। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से इस्तक़बालिया में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से सरबराहाने मुमलिकत के एजाज़ में दिए जाने वाले इशाइये में भी शरीक होंगे। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार। वजारत खजाना और FBR से रिपोर्ट मांगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफ करें।
बॉर्डर पर कस्टम एजेंसी एहलकार और फोर्सेज की तादाद कार बढ़ाने का भी कह दिया। जरा के मुताबिक माहाना 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से 10 अरब से ज्यादा का नुकसान का सामना। स्मगलिंग बढ़ी तो दरामदी बिल में कमी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। मुतल्लिका इदारों से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का 12वां रोज। मजीद सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए। करोड़ों रुपए की रिकवरियां। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने ट्वीट किया, मजमूई तौर पर रिकवरी 4.5 अरब रुपए से तजावुज कर गई। 1104 अफराद गिरफ्तार हैं। हैस्को की कारकर्दगी बेहतरीन रही। सेप्को और पेस्को को भी ज्यादा मुतहर्रिक होने की जरूरत है। डिस्कोज में मौजूद माफियाज में भी खौफ पैदा हो चुका है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक में तेजी लाने का फैसला। कराची में 15 से ज्यादा मकामात पर मुजाहिरे। नर्सरी शाहराए फैसल पर बड़ा एहतजाज। कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने 3 दिन के लिए धरना। लाहौर में 21 और कोयटा में 24 सितंबर। कराची में 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों, भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ बाहर निकलेंगे। माजी की हर हुकूमत ने कौम को IMF के कर्जों में जकड़ा। सारे कर्जे अपनी नाअहली और करप्शन की नजर कर दिए गए। अवाम ऐसी आवाज उठाए कि गूंज आलमी सतह पर हो। चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के 10 साल मुकम्मल। 10 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल फोरम की तीसरी कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए निगरान वज़ीर आज़म को दावतनामा मौसूल। अनवारुल हक काकड़ आइंदा माह चीन का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान CPEC और दीगर मंसूबों से मुताल्लिक भी उमूर का जायजा लिया जाए। भारतीय मसनूआत के जरिए IT सेक्टर में बराह रास्त भारतीय मुदाखलत का खदशा। वफाकी हुकूमत ने तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबों को मरासला भिजवा दिया। मरासले में कहा गया कि मसनूआत में वायरस की मौजूदगी का खदशा है। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की अहम मालूमात को खतरा है। सार्फिन को भारतीय निजात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूआत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। मुतबादिल मसनूआत के लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन से मशवरा करने की तजवीज़ दी गई। एशिया कप में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की कुर्सी खतरे में। वजारत बराए बैनुल सूबाई राब्ता ने इजलास तलब कर लिया। PCB सरबराह के मुस्तकबिल पर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन में ताखीर करने पर भी IPC ने PCB मैनेजमेंट कमेटी को तनबीह की थी।